Good morning, students. Let us continue with the part 3 of lesson 3 questions. The man felt better and asked for something to drink. The king brought fresh water and gave it to him. By this time the sun had set and the air was cool. The king with the hermit had carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. The man closed his eyes and lay quiet. The king, tired by his walk and the work he had done, lay down on the floor and slept through the night. When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange weird man lying on the bed was. तो जैसे ही उस आदमी को ठीक लगता है तो वो पानी के लिए पानी मांगता है। तो राजा अंदर जाकर उसके लिए ताज़ा पानी लाता है और उसे पिलाता है। तब तक शाम ढल चुकी थी और ठंडी हवा बह रही थी। राजा और हामिद दोनों उस घायल आदमी की मदद करते हैं और उसको अंदर झुपड़ी में ले जाकर उसको सुलाते हैं। जैसे ही वो लेट जाता है तो उसे अपनी आँख बंद कर लेता है और शांति से सो जाता है। राजा भी बहुत थक चुका था चल चल के और काम करके। वो भी ज़मीन पर लेट जाता है और पूरी रात सो जाता है। जब वो उठता है थोड़ी देर के बाद तो उसे ये भी याद नहीं रहता है कि वो कहाँ पर है और जो इंसान दाढ़ी वाला था वो उसके बगल में सोया हुआ है वो कौन है। Forgive me, said the bearded man in a weak voice. When he saw that the king was awake, I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. तो वो जो घायल आदमी था वो उससे माफ़ी मांगता है और वो बहुत अपनी कम धीमी आवाज़ से उसे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो। तो राजा उठ जाता है कि ये क्यों ऐसे कह रहा है। वो उसे कहता है कि मैं तुझे पहचानता भी नहीं और बिना कारण के मैं तुझे माफ़ी क्यों मांग रहा है और मैं क्यों माफ़ी दूँ। अगर कोई भूल हो तो मैं तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ। You do not know me, but I know you. I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. I knew you had gone alone to see that hermit, and I made up my mind to kill you and your way home. तो उसे वो ये कहता है कि तुम मुझे नहीं जानते हो पर मैं तुम्हें जानता हूँ। मैं तुझे अपना दुश्मन मान रहा था और मैं तुझ पर हमला करने वाला था और तुझे मार देने वाला था क्योंकि तुमने मेरे भाई को सज़ा दी थी। तुमने उसको मौत की सज़ा दी थी। सीज्ड टूक बाय फोर्स, क्योंकि मेरे भाई ने जायदाद कब्जे में कर ली थी इसलिए आपने उसे सज़ा दी थी। मुझे पता था कि तुम उसकी खोज में हर्मिट के खोज में निकले हो और मैंने ठान लिया था कि मैं तुम्हें मार कर ही रहूँगा, इसलिए मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। But the day passed and you did not return, so I left my hiding place and I came upon your bodyguard who recognized me and wounded me. तो मैं छिपकर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था कि कब तुम आओगे और मैं तुझे मार डालूँगा, पर तुम आए नहीं और तुम्हारे जो रखवाले थे वो उसने मुझे देख लिया और मुझे पहचान लिया और उन्होंने मुझ पर हमला किया और मुझे चोट लग गई। I escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wounds. I wished to kill you and you have saved my life. Now, if I live,
I will serve you as your most faithful servant and will order my sons to do the same. Forgive me. तो वो कहता है कि मैं उनसे तो बचकर आ गया, पर आपने मेरी मदद की, मेरे घावों की को आपने साफ कर कर उसमें उसको दवा लगाई, और मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी सेवा करूं। जब तक मैं इस दुनिया में हूँ मैं आपकी सेवा करूं। मैं आपका एक वफादार मुलाजिम बनना चाहता हूँ, और मेरे जो बच्चे होंगे वो भी तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे, इसलिए मुझे माफ़ी दे दो। The king was very happy to have made peace with his enemy so easily and to have won him over as a friend. He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him, and he promised to give him back the man his property. Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked round for the hermit. Before going away, he wished once more to get answer to his questions. The hermit was on his knees sowing seeds in the beds, and that had been dug the day before. The king went up to the hermit and said, "For the last time, I beg you to answer my question, wise man." तो राजा कहता है, मैं खुश हूँ और मुझे शांति मिली कि मेरा जो दुश्मन था वो मेरा दोस्त बन गया, और कि मेरी तुमसे दोस्ती भी हो गई, और मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, और मुझे कोई ज़रूरत नहीं कि तुझे एक गुलाम की तरह मेरे वहाँ पर काम करने की। मैं एक अच्छा सा डॉक्टर तुम्हारे घर भेजूँगा, और वादा करता हूँ जो भी ज़मीन हत्या ली है वो ज़मीन तुझे वापस मिल जाएंगी। उस इंसान को वहाँ छोड़कर, जो घायल इंसान होता है उसको छोड़कर, वो राजा झोपड़ी में से निकलकर उस हर्मिट को ढूंढने चला जाता है। वो कहता है कि मैं जाने से पहले मेरी जो विश है उस सवाल का जवाब मैं तुमसे चाहता हूँ। वो उसके पैरों पर झुककर, जो हर्मिट था वो बीज बो रहा था। The hermit was on his knees sowing in the beds that had been dug the day before. The king went up to the hermit and said, "For the last time I beg you answer my questions, wise man." तो जब उसने देखा तो वो जो हर्मिट था वो बीज बो रहा था, उसने उसके पहले उसने खड्डा खोदा था, उसमें वो बीज डालकर उसको वो खेती बाड़ी के लिए तैयारी कर रहा था। तो राजा उसके पास जाता है और उससे कहता है, मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या आप मेरे इस प्रश्नों का जवाब दोगे? वाइज मैन, "You have already been answered," said the hermit, still then bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. "How have I been answered? What do you mean?" तो कहता, आपके प्रश्न का जवाब आपको मिल ही गया है। वो फिर भी ज़मीन पर घुटने के बल था, और वो राजा को देखकर उसकी तरफ सामने देखकर यह जवाब देता है। तो राजा एक तरफ से उसे देखते रह जाता है, ये कैसे कह सकते हो? तो वो उसे कहता है कि तुमने मुझे प्रश्नों का जवाब कहाँ से दिया? आप क्या कहना चाहते हैं? डू यू नॉट सी? रिप्लाई द hermit, "If you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away." तो वो कहता है, क्या तुमने देखा नहीं कि अगर तुम मुझ पर दया न खाती, मेरी कमज़ोरी पर तुझे दया नहीं आती कल, तो तुम मुझे खड्डा खोदने के लिए मदद नहीं करते। You would have gone away. Then that man would have attacked you, and you would have wished you had stayed with me. तो इसलिए तुमने यहाँ पर रुके और तुमने मेरी मदद की। अगर तुम मेरी मदद नहीं करते तो तुम वापस चले जाते। जैसे ही तुम वापस चले जाते वो आदमी तुम पर हमला करता, और तुम ये सोचते कि काश मैं वहीं पर रह जाता और यहाँ पर नहीं आता तो मैं आज बच जाता। So the most time was when you were digging the beds, and I was the most important man, and to do me good was your most important reason. तो यह खास आदमी मैं था, और वो
मूल्यवान समय था जब तुमने खड्डा खोदा था, और वो मूल्यवान बिजनेस वो था कि तुमने मेरे लिए कुछ अच्छा काम किया। Afterwards, when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him, because if you had not were caring for him, because if you had not dressed his wounds, he would have died without having made peace with you. और दूसरा सवाल का जवाब ये है कि जब वो आदमी घायल होकर हमारी तरफ दौड़ते हुआ आया, वो सही समय था जब तुमने उसके ध्यान दिया, उसकी तरफ तुमने मदद का हाथ बढ़ाया। अगर तुमने उसके घाव पर मरहम पट्टी नहीं की होती तो वो मर जाता और तुम दोनों में शांति नहीं होती है, और उसके मन में भी कलेश होता और उस तरह से वो मन में कलेश लेकर चला जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, तो वो एक खास आदमी हुआ तुम्हारे लिए। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और जो काम आपने उसके लिए किया वो आपका इम्पॉर्टेंट बिजनेस था। रिमेंबर देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ। ये याद रखना कि सही समय वही होता है जो सही समय पर आप करो, और वो होता है अभी। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव द एनी पावर टू हेल्प। समय वही होता है कि आप सही समय पर सही काम करो, क्योंकि वही टाइम होता है कि वो आप काम कर सकते हो। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विथ एन पर्टिकुलर मोमेंट। वो इंसान खास होता है जो खास आदमी के साथ आप खास चीज़ें बांटते हो। फॉर नो वन नोज वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स। तो वो एक खास पल होता है जहाँ पर हम एक दूसरे के साथ खास चीज़ें बांट सकते हैं, क्योंकि कभी कोई नहीं जानता है कि अगले समय क्या होगा और फिर हम मिलेंगे या ना मिलेंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड। सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस वो होता है कि आप सभी के साथ अच्छा व्यवहार करो, बिकॉज वी वर सेंट इन टू द वर्ल्ड फॉर द पर्पस अलोन। क्योंकि हमें इस दुनिया में इसीलिए भेजा गया है कि हम कुछ अच्छा करें और सभी के लिए अच्छा कर पाएँ। हमें हर लोगों की अच्छी तरह से मदद करनी चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। तो हमारा लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। हमारा यहाँ लेक्चर ख़त्म होने पर हम नेक्स्ट लेक्चर पर नेक्स्ट टाइम मिलेंगे।